In this lesson of beginners to learn coding, we are going to understand the arithmetic operators in Python. So we are going to learn that how we are going to use these arithmetic operator plus, minus, divide, multiply. Now next step is we are going to write down the algorithm of a program. Then we write down the pseudocode of that program. Then we convert that pseudocode to a flowchart. And after that flowchart, we write down the code. Now the question is program to declare two variable a and b and display addition, subtraction, multiplication and division of the values and display it. That means right side I have already given you all those addition, subtraction, multiplication, division sign. हमें क्या करना है? We have to write down the algorithm. तो algorithm means in our own language. तो what is the first step? हमें पहले क्या करना है? We need to first declare two variable a and b with some value. Means some value is going to be stored. Next step, we need to display the addition of these two a and b. Means a is going to add with b. Next, we display the subtraction of a and b. We use minus sign. Last two, display multiplication and division of a and b. Means these are the steps that we need to follow. Now we convert this algorithm to a pseudocode. So pseudo start with start and stop. Now first declare a variable a and b with some value. So what we have done? We declare a equals to 10, b equals to 5. मीन्स हमने क्या करा? दो वेरिएबल बनाए ए बी, उन्हें इनिशियलाइज कर दिया किससे? 10 और 5 से. अब हमें इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो नेक्स्ट लाइन इज टू डिस्प्ले एडिशन. तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट डाउन? डिस्प्ले ए प्लस बी. आफ्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो व्हाट इज द लाइन? डिस्प्ले a minus b. Next two line, display a multiply by b and a divide by b. So all the steps now over. We know that what we have to do. Now we move to the next step. So now we going to convert this pseudo to a flowchart, a diagrammatic representation. So now first thing, start and stop. Next line, we need to convert this a equals to 10, b equals to 5 into a flowchart symbol. And what is that symbol? वो symbol कौन सा है? Yes, processing box. A equals to 10, b equals to 5. And then next box to display the information. And we write down all the line a plus b, a minus b, a multiply by b and a divide by b. So we have converted all those pseudo code now to a flow chart. अब हमारा एक फ्लो चार्ट बन के आ गया जिसमें हमने पहले वाले में ए और बी की वैल्यू इनिशियलाइज करी, नेक्स्ट स्टेप में हमने उनको डिस्प्ले कराया और लास्ट में वो स्टॉप हो गया. इसी को मैंने देखो एक और तरीके से बना रखा है. नाउ अगेन आई हैव डन द सेम थिंग अगेन बाय यूजिंग अ फ्लो चार्ट. एक लेकिन उसको क्या करा, थोड़ा सा आई मेक सम चेंजेस. तो मैंने देखो क्या करा, फर्स्ट लाइन इज गोइंग टू बी सेम. आई इनिशियलाइज ए एंड बी इन द सेम वे. नेक्स्ट स्टेप पे देखो मैंने क्या करा, पहले मैंने declare some variable r1, r2, r3 and r4. Inside that I store the results of a plus b, a minus b, a multiply by b and a divide by b. And then after that I display the values. Means you can use the left hand side method also or you can use right hand side method also at the time when you going to write down the code. जब तुम कोड लिखोगे तो तुम इनमें से कोई भी मेथड का यूज कर सकते हो, जो इजी पड़े आप उसका यूज करो. लेफ्ट वाले में मैंने पहले उसको डायरेक्टली डिस्प्ले करा रखा है, राइट साइड वाले में मैंने उनके रिजल्ट्स को पहले वेरिएबल्स में स्टोर कर रखा है, उसके बाद में डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम इस फ्लो चार्ट को कन्वर्ट करेंगे किस में? प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. सो वी गोइंग टू अंडरस्टैंड द फ्लो चार्ट और उसको देख के हम उसको कन्वर्ट में करेंगे किस में? कोड में. किसी भी लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट करना है फ्लो चार्ट को समझना ज़रूरी है. अब देखो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, हम जो हमने सूडो कोड बनाया उसको हमने पहले फिर फ्लोचार्ट में कन्वर्ट करा. अब हम उससे एक प्रोग्राम लिखेंगे जो पाइथन में लिख रहे हैं. पाइथन का कोड बनाने जा रहे हैं जिसमें हम वही चीज़ कर रहे हैं कि हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे और उसको डिस्प्ले कराएंगे. तो अब हम फ्लोचार्ट को पढ़ के हम कोड में उसे कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पाइथन के जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो कौन कौन से हैं. तो हमें प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टार का साइन मल्टीप्लाई, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश जो है ये फ्लोट डिवीज़न है और डबल फॉरवर्ड स्लैश जो है ये इंटीजर डिवीज़न है. फ्लोट वाला जो है पॉइंट में आंसर देगा और डबल वाला जो है इंटीजर में देगा, विदाउट डेसिमल पॉइंट देगा. अब हम बनाते हैं इसका कोड.
देखो सबसे पहले हमने क्या करा, हम रीड करेंगे, जहाँ स्टार्ट है उसको तो हम छोड़ देंगे, हमें जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें कोड लिखना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, हमने a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 5, हमने ये दो वेरिएबल बनाए जिसके अंदर 10 और 5 स्टोर है। तो a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 5 प्रोसेसिंग बॉक्स के अंदर बना रखा है फ्लो चार्ट में। तो हम इसको जैसे हमने यहाँ बनाया, हम ऐसे ही यहाँ पर पाइथन के अंदर दो वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 5 करके हम स्टोर करके रख देंगे। तो ये हमारे दो वेरिएबल बन गए जिनके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करके अब रख दी। अब हमें क्या करना है, हमें इनको डिस्प्ले कराना है। तो नीचे हमने देखो डिस्प्ले ए प्लस बी, डिस्प्ले ए माइनस बी कर रखा है। तो यहाँ फ्लो चार्ट में तो हमने डिस्प्ले लिख रखा है, लेकिन पाइथन में डिस्प्ले का कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ पर डिस्प्ले की जगह में प्रिंट आता है, वो भी स्मॉल लेटर में। तो हमने जैसे यहाँ पर लिखा, हम उसको वैसे के वैसे ही देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैंने प्रिंट ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट के अंदर मैंने ए प्लस बी लिखा, उसके बाद दूसरे वाले मैंने ए माइनस बी, तीसरे में ए मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड और डबल डिवाइड। जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा ना, तो ये मुझको इस तरह से आउटपुट देगा 15, 5, 50, 2.0 और 2। ये 2.0 और 2 क्या है, ये आपकी जो वैल्यूज़ हमने दी फ्लोटिंग और इंटीजर, ये उसके बारे में बात हो रही है। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करेंगे। मान लीजिए हमने क्या करा, हमने कहा कि यूज़र से एक्सेप्ट करा रहे हैं हम। देखो क्वेश्चन भी हमारा क्या है, डिक्लेयर एंड एक्सेप्ट द वैल्यू फॉर टू वेरिएबल ए एंड बी फ्रॉम द यूज़र। अब हम डिक्लेयर एक्सेप्ट करवा रहे हैं तो हमने वैल्यू लेनी है। तो इसका मतलब हमने देखो यहाँ पर अब क्या करा है, प्रोसेसिंग बॉक्स की जगह पे हमने किसका यूज़ करा, इनपुट बॉक्स का यूज़ करा। तो इसका मतलब हमें यूज़र से वैल्यू लेनी है। अब वैल्यू लेने के लिए हमारे को पाइथन में हमारे को क्या करना पड़ता है, हमें पाइथन में इनपुट का यूज़ करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यही दो लाइन को लिखेंगे, लेकिन हम ये यहाँ पर हमने करा है और हम इसको a इक्वल्स टू इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ a। अब मैंने इनपुट बोला, यहाँ int लिखा हुआ है, और b इक्वल्स टू इनपुट एंटर द वैल्यू फॉर b, मैंने यहाँ पर इनपुट बोल रहा हूँ और लेकिन आगे देखो int भी लिखा हुआ है। तो मैं int क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, तो देखो जो वैल्यू आपसे ले रहा है यूज़र से, वो इनपुट ले रहा है, ठीक है। हम वैल्यू जो भी इनपुट करवा रहे हैं, जो यूज़र हमें देगा वैल्यू, वो इनपुट लेगा, और इनपुट जो वैल्यू लेता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में लेता है इन पाइथन में। तो हमें अगर इसमें वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50 अगर हम ले रहे हैं, तो ये समझ के चलना कि वो इनपुट जो है वो उसको स्ट्रिंग में लेगा। स्ट्रिंग का मतलब हो गया, वो एक स्ट्रिंग हो गया, मतलब वो उसको करेक्टर मानेगा। लेकिन हम जब उसे ए और बी को ट्रांसफ़र करेंगे तो हम उसकी टाइप कास्टिंग करेंगे, मतलब उसकी कास्ट को चेंज कर देंगे, उसके डेटा टाइप को चेंज करेंगे, मतलब वो वहाँ से स्ट्रिंग में आएगा, लेकिन जाते जाते ए और बी में कैसे चला जाएगा, इंटीजर में। तो मैंने उसके आगे देखोगे लिख दिया INT लिखा। ये INT क्या कर रहा है, उसकी कास्ट को चेंज कर रहा है। मतलब मैंने उसकी एक तरह से अगर हम कहें तो जाति को चेंज कर दिया। मैंने उसको, वो किसी और कास्ट का था, उसे किसी और कास्ट का बना दिया, और वो बी में, ए में और बी में जा करके वो स्टोर हो रहा है। तो ये बीच में है ना, ये INT, ये इसके राइट साइड से जो वैल्यू आ रही है उसकी कास्ट को चेंज करके बी के अंदर उसे स्टोर करा। तो ए और बी जो अभी इस समय स्टोर करेंगे ना वैल्यू, वो इंटीजर में कन्वर्ट होगी। अब आप ये नहीं करोगे कि कोई स्ट्रिंग पास कर दिया, मतलब आपने ABC पास कर दिया, कहा उसको कन्वर्ट कर दो, नहीं। मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप नंबर एंटर करते हैं और आप INT नहीं लिखते हैं, तो वो एक करेक्टर बनेगा, तो वो आपका एक स्ट्रिंग बनेगा। तो स्ट्रिंग बनेगा तो वो आपको 10 और 20 को 10 और 20 नहीं मानेगा, वो एक स्ट्रिंग मानेगा। तो जब आप A प्लस बी करोगे तो वो ज्वाइन कर देगा। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें INT लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, देखो फिर वही चीज़ है, डिस्प्ले। तो हमने क्या करा, हमने सारे के सारे जो प्रिंट की लाइन थी, हमने देखो उसे कॉल कर दिया। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ पर देखो आउटपुट में मैं दिखा रहा हूँ, मैंने एंटर द वैल्यू फॉर ए 20 करा, मैंने एंटर द वैल्यू फॉर 2 करा। जैसे ही मैंने उसको एंटर दबाऊंगा और उस एग्जीक्यूट करेगा, तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 प्रिंट है, ये मुझे ये 5 आंसर देंगे, जिसमें से जो लास्ट के दो आंसर है वो किसके हैं, एक फ्लोटिंग का है और एक इंटीजर का है। क्योंकि डबल स्लैश किसको देता है, इंटीजर डिवीज़न है, और सिंगल स्लैश जो है फ्लोटिंग डिवीज़न है, तो वो पॉइंट में आंसर आएगा। तो इस तरह से आपका एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का एक क्वेश्चन मैंने किया है, जिसमें आप कैसे यूज़ करते हैं और इनपुट और बिना इनपुट के आप कैसे पाइथन का एक कोड लिख सकते हैं।